So the major problem in Indian diet, hi Sandeep, in Indian diet is that everybody is high on carbs. Now I am not saying that eating a lot of carbs is bad, no, not at all. I'm a strong believer of sustainable dieting, something that you can follow for long, take it too long. I am a total foodie. I love eating food. I just cannot, stop eating good food. So I do not want you people to do that as well, because that is not life. You need to enjoy your life, but then at least, you should be healthy, meet your goals as well. That is also very important. So sustainable dieting is something that you need to follow on. So your basic average Indian diet consists of high amount of carbs. You are eating a lot of carbs, and problem ये हो जाता है कि you need carbs, you need proteins, you need fats, you need all the three macronutrients. अब I'll get to it, थोड़ा डिटेल में बाद में बोलता हूँ, but then simply अगर मैं पुट करूँगा तो you need all three. अब अगर कार्ब अगर खाएंगे हम लोग, सिर्फ कार्ब इज एन एनर्जी सोर्स, हमें ताकत मिलती है, ठीक है। जैसे हमें बचपन में मम्मी कहती थी ना, बेटा अगर रनिंग रेस है, खेलने जा रहे हो तो एक केला खा लो। सो कार्ब्स इज फॉर एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी का आवर बॉडी यूजेस कार्ब्स फॉर एनर्जी। नाउ आई सेड इंस्टेंट एनर्जी बिकॉज उसमें भी टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। तो अगर केला खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, तो वर्कआउट से पहले केला खाते हैं, या फिर अगर भूख लगी है तो खाते हैं, जो भी चीज़ें आप खाते हो। फॉर एग्जांपल आप समझो एक चपाती खाते हो, चपाती में भी कार्ब्स होता है। राइस खाते हो, राइस में भी कार्ब्स होता है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि चपाती और राइस को एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि आप मोटे हो जाओगे। कंसेप्ट ये नहीं होता है, अगर आप ज़्यादा खाओगे, जितना बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो आप मोटे होते हो। सो ओके, सो स्टार्टिंग एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि सिंस हम लोग कार्ब्स हमेशा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से अपना एनर्जी सोर्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की डेफिसिट आ जाती है। अब प्रोटीन्स की डेफिसिट बोले तो क्या, वी डू नॉट ईट प्रोटीन्स। ना आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। आवर होल डीएनए, आवर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, डीएनए, आवर फुल बॉडी, right? Now I'm talking to you, I'm able to talk because my vocal cords are vibrating. What is it made up of? Again, everything is made up of amino acid chains. My hair, my nail, everything. So yeah, I'll tell you the solution, Sheetal. Wait for it, right? So we need proteins. अब proteins कितना चाहिए होता है, अगर वो देखने जाएंगे तो उस पर तो डिबेट चलती रहती है। Everyone wants to know कि प्रोटीन कितना है। If I tell you in a simple manner, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, studies has shown that 1.2 times of your body weight in kgs। समझो अगर आप एक 65 kgs के लड़की हो या लड़के हो, एंड आपको अगर प्रोटीन्स इनटेक अगर जानना है, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1.2, so that's about 78 grams of protein. So that is the amount of protein that you require for the whole day, even if you're working out or not working out. I'm just trying to break it down कि there are some people who go to the gym and they consume whey protein, या खाते अंडे खाते, चिकन खा लेंगे, या फिर वेजिटेरियन है तो पनीर खा लेंगे, but on rest days they forget or they just neglect it. They do not eat proteins. You need to understand your body will repair itself when you're resting. So it needs protein even when you're resting, even when you're not doing any kind of activities. So you need that protein intake to be up even on your resting days. That is one thing that you need to follow. Second is carb and fats, both are energy sources. Now if your carb intake goes up, you have to maintain that your fat intake has to go down, because okay, say if you are going to a mall for shopping, fine, and if you want to use credit card, ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा है कि इफ यू यूज क्रेडिट कार्ड यू विल गेट अराउंड 10% ऑफ या फिर 15% ऑफ, एंड यू हैव अ डेबिट कार्ड एज वेल, what will you prefer? You will definitely go with a credit card which will give you 15% off, right? So similarly, your body always prefers carbs over fats.
सो व्हेन यू आर हैविंग हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स, यू नीड टू सी दैट कार्ब्स के साथ आपको फैट थोड़ा कम करना है. इन शॉर्ट, हम ये सिंपल अगर कंसेप्ट अगर बता दूं, आप लोग जो पराठा खाते हैं, तो पराठा में जब वो ऊपर से वो जो घी लगाते हैं ना, मल मल के एकदम मस्त में, तो वो थोड़ा घी कम कर दो. दैट इज द सिंपल सोल्यूशन. नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कितना खाना चाहिए, व्हाट इज द राइट अमाउंट, व्हाट इज द क्वांटिटी दैट यू आर सपोज टू ईट. ये सब तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है. सो इफ यू वांट मी टू आंसर दैट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट. आपको कैलोरी आपके बॉडी के हिसाब से खाना चाहिए. आपको कोई नहीं बता पाएगा कि यू नो हर्षद तुम इतना खा लो, या फिर यू नो आशुतोष तुम इतना खा सकते हो. ऐसे कोई नहीं बता सकता आपको. everybody has got a different body and all their bodies react in a different manner. So you have to eat according to your body's requirement. Now how do you understand your body's requirement? समझो सिंपल, बॉडी को कैलोरीज क्यों चाहिए होता है. नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज एन इनटेक, दिस इज एन सॉरी, what is the protein intake you said? Sadaf, the protein intake, what I said is 1.2 is the minimum that you need to keep up, 0.8 to 1.2, but 1.2 में studies has shown that it is much better as compared to 0.8. But then it again depends on the cases wherein you work out or not. Fine, okay. So yeah, coming back to calories, coming back to BMR. अब दी अमाउंट ऑफ कैलोरीज, अगर मैं समझो पूरे दिन भर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बिस्तर में ऐसे ही पड़ा हूँ जैसे लॉकडाउन में हम करते हैं, यू नो, बिस्तर में पड़े एंड नेटफ्लिक्स देखते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो योर बॉडी नीड्स एनर्जी. बेसिकली इन ऑर्डर टू कीप यू अलाइव, योर बॉडी हैज टू एक्सपेंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. मतलब अगर आपको खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए गैस तो चालू करना पड़ेगा ना. सिमिलरली आपके बॉडी को भी एनर्जी बर्न करना पड़ता है. सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू एक्सपेंड इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ अलाइव इज कॉल्ड एज बीएमआर. ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो सबके केस में अलग अलग होता है. और एक बेसिक फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला है, जिसमें आपको एज, हाइट, वेट सब लगाना है, एंड देन यू नो बहुत सारे मम्बो जम्बो करना है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स ढूंढना है, वो सब है. वो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो. बट इफ यू, आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट. अगर आपको अगर नॉर्मली अगर करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका बीएमआर कितना होगा, ठीक है, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 23.5. ठीक है, 23.5 इज द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. जस्ट मल्टीप्लाई योर वेट बाई 23.5. से फॉर द सेक ऑफ इट आई विल कंसिडर 100 kg. मल्टीप्लीकेशन के लिए ईजी है. सो 100 kg इंडिविजुअल will need 2350 calories, right, isn't it? है ना, बराबर ना. 23.5 into 100, that would be 2350. Perfect, yeah. So in a day, without doing anything, that person will require around 2350 calories in order to just sustain. ठीक है. Now मतलब उसको अगर कुछ नहीं करना है, अगर बेड पे अगर लेटे रहा पूरे दिन भर में, तो उसको 2350 कैलोरीज लगेंगे. ठीक है. अब अगर आपका एक्टिविटी लेवल्स अगर ज़्यादा है, समझो अगर सिग्नेटरी कुछ करता ही नहीं है, पूरे दिन भर में पड़ा है, वर्क फ्रॉम होम है, वो भी लेटे लेटे करता है काम, अगर ऐसा है, डेस्क जॉब तो बोल ही नहीं सकते, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लेटे लेटे ही काम कर रहा है. सो यू मल्टीप्लाई दैट बाई 1.2, दैट इज द एक्टिविटी फैक्टर, राइट. एंड या फिर अगर समझो थोड़ा लाइट एक्टिविटी है, अगर आप थोड़ा बहुत कर लेते हो, लाइक यू नो यू वॉक, थोड़ा वॉकिंग कर लेते हो, या फिर थोड़ा आप बच्चों के साथ खेल लेते हो, या फिर यू नो मम्मी आपको बोलती है जा बाजार से एटलीस्ट वो यू नो समोसा लेके आ जा, तो आप चल के जाते हो, तो वो सब थोड़ा एक्टिविटी हो गया. सो देन यू मल्टीप्लाई बाय 1.3 एंड से इफ यू लाइक सुपर एक्टिव. ठीक है, सो इफ यू लाइक एक्टिव देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1.7. इन शॉर्ट 2350 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, सो दैट विल कम अप टू अराउंड 3350 या 30, आप कर लो, कैलकुलेट कर लो. इट विल कम अप टू अराउंड 3450 या समथिंग अराउंड लाइक दैट, 3850. दैट इज योर TDEE. मतलब आपको डेली कितने कैलोरीज चाहिए होंगे टू जस्ट मेंटेन योर वेट. जस्ट मेंटेन, मतलब अगर आप 100 kg को हो एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर वेट एज 100 kgs ओनली,
दिस इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट यू नीड टू इनटेक इन ऑर्डर टू जस्ट मेंटेन. अब सिंपल फंडा है, इफ यू वांट टू गेन वेट you just eat more than TDE. Okay, it doesn't work as simply as that, but then in order to just convey it, so you eat more than TDE, you end up gaining weight. You eat less than TDE, you lose weight. And if you eat according to your TDE, you maintain weight. ठीक है. अब ये बहुत ही सिंपल फंडा है. समझो आप आपके पास 1000 रुपये, ठीक है, एंड आपको लेना है कुछ, आपने एक वॉलेट देख लिया, बहुत अच्छा वॉलेट देख लिया, ठीक है, तो वो वॉलेट का कॉस्टिंग ही अराउंड 1200 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 200 रुपये आप किसी से उधार लोगे, भाई जीपे कर देना, है ना, यही करते हो ना, भाई जीपे कर देना ज़रा, तो यू बोरो 200 रुपीज़. in our body what happens is if you spend more calories than what you're taking in, you are in deficit, it means. तो आप क्या होता है, आपका फैट लॉस चालू हो जाता है, एनर्जी जो एक्स्ट्रा जो है वो फैट में से निकल जाता है. सो हमें भी यही करना है. हम जैसे पैसों को बैलेंस आउट करते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में भी बैलेंस आउट करने सीखना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब अगर समझो आपके पास 1 लीटर पानी का बॉटल है, तो अगर पानी का बॉटल अगर समझो आपने 750 ml या 800 ml पी लिया पानी, तो आपके पास 400 ml बचेंगे, राइट. सो यू ड्रिंक अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी. अगर आपके पास पानी नहीं बचे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा. सिमिलरली आपके बॉडी के केस में भी अगर आपको कैलोरी चाहिए, कैलोरी आपको कहाँ से मिलता है, जो चीज़ें हम खाते हैं उससे. अगर आपको कैलोरी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, सो इट्स ओके, चिल मारो, कल भी खा सकते हो आप. खाने के लिए थोड़ी ना जिंदा हो, है ना, आप जिंदा हो क्योंकि आप खाते हो, ऐसे होना चाहिए. तो स्टॉप इट देयर, यू कैन बैलेंस इट आउट द अदर डे. दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू आइडियली. एग्जैक्टली लाइक अगर आपके पास पैसे ना हो तो स्मार्ट पीपल व्हाट दे डू इज दे डू नॉट आस्क अदर्स कि भाई जीपे कर दे या पेटीएम कर दे. व्हाट दे विल डू इज दे विल वेट till they can adjust for more 200 rupees and then they'll come back and shop. So this is how you do it. ऐसे आपको smartly adjust करना है. So